heat conduction. The Fourier's law क्या है? Fourier's law of heat conduction is an empirical law based on observation and state as follows. क्या है Fourier law? The rate of flow of heat through a simple homogeneous solid. The rate of flow of heat flow right through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of the section at right angle to the direction of heat flow. ये direct proportional है area of section right angle to the direction of flow पे, and a change of temperature with respect to the length of the path of the heat flow. Mathematically क्या है? It can be represented by the equation. कौन सा है? Q inversely proportional to A into dt by dx, where Q क्या है? Heat flow through a body per unit time in watts. A means the surface area of heat flow perpendicular to the direction of flow meter square. dt means होता है temperature difference of the faces of block homogeneous solid of thickness dx through which heat flow डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इसका यूनिट है, और dx क्या है? थिकनेस ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीटर. thus q equals to minus k into a dt by dx, where k is constant of proportionality is known as thermal conductivity of the body. The negative sign of k equation 1 क्या होता है? टेक्स केयर द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर अलॉन्ग द डायरेक्शन. ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर अलॉन्ग डायरेक्शन से. ये नेगेटिविटी इसीलिए शो करते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीजिंग थिकनेस और द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx ऑलवेज नेगेटिव along positive x direction, and therefore the value of q becomes positive. Assumptions के इसके the following are the assumptions in which the Fourier's law is based. Conduction of heat flow takes place under steady state condition. Second है heat flow is unidirectional. फिर है temperature gradient is constant and temperature profile is linear. There is no internal heat generation. Fifth है bonding. The bonding surface are isothermal in character. Sixth, the material is homogeneous and isotropic. That is, the value of thermal conductivity is constant in all directions. Some essential features of Fourier's law क्या है? Following are the some essential features of the Fourier's law. It is applicable to all matter. May be solid, liquid और gaseous. ये सब पे applicable होता है, चाहे वो solid हो, liquid और gaseous हो. Second, it is based on experimental evidence and cannot be derived from first principle. Third, it is a vector expression indicating that heat flow rate it is in the direction of decreasing temperature and is normal to an isotherm. Fourth, it helps to define thermal conductivity के transport property of medium through which heat is conducted. ये हो गया. अभी ये अपन बाद में देखेंगे. एक न्यूमेरिकल देख लेते जो कि बहुत ही सिंपल है. ये है एग्जाम्पल 1.1. कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू अ कॉपर प्लेट 45 mm विथ थिक वूस. वन फेज इज मेंटेन 350 डिग्री एंड अदर फेज इज 50 डिग्री. टेक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एज 370 वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. अभी क्या निकालना है हमने? कैलकुलेट हीट ट्रांसफर. क्यों निकालना है अपने को इसमें? थ्रो. अभी टेम्परेचर डिफरेंस अपने को निकालना है T2 माइनस T1. तो यहाँ पे 50 दिया है, 50 में से 350 गए तो जो आएगा वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा. अभी थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट क्या है? जो लेंथ है 45 mm दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. 0.045 मीटर. और थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स के 370 वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. तो अभी क्या करना है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया क्यू निकालना है. फ्लक्स जो छोटा क्यू रहता है फॉर फोरियर्स लॉ, क्यू मीन्स क्या होता है? माइनस के dt बाई dx. अभी अपन ने जो देखा वही है. तो माइनस के T2 माइनस T1 अपॉन एल. dt मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1. x मीन्स होता है L. अभी ये डायग्रामेटिकली बता रहे हैं कि T1 जो है यहाँ पे ऐसा जाके ऐसा जा रहा है. ये 350 डिग्री है और T2 है 50. ये K मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी 45 mm. एक कॉपर प्लेट है.
तो यहाँ पे क्या जो वैल्यू है उसको अपने को बनाना है। तो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला ये भी लगा सकते, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्यू बाय इक्वल्स टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे लगानी है, -370 इंटू 50 माइनस 350 अपॉन 0.045 लेंथ जो अपन ने यहाँ पे निकाली है मीटर में। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 2.466 इंटू 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर। इसको मेगावाट में भी किए हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए अभी सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ प्लेन वॉल इज 150 mm थिक एंड इट्स वॉल एरिया इज 4.5 मीटर स्क्वायर एंड इट्स कंडक्टिविटी इज 9.35 वाट पर डिग्री सेल्सियस। The surface temperature of the steady at 150 degree Celsius and 45 degree Celsius determine the heat flow through a plane wall. सेकंड निकालना है आप देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द फ्लो डायरेक्शन। तो सिंपल है, पहले क्या करेंगे अपन, जो गिवन है वो लिखेंगे। थिकनेस ऑफ द प्लेन वॉल, लेंथ दिया है 150 mm, उसको मीटर में करवा 0.1550 मीटर। अभी एरिया है 4.5 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस निकाला T2 माइनस T1, तो 45 माइनस 150 माइनस 105। ये T1 है, ये T2 है, हो गया। सॉरी ये T1 ये T2 माइनस T1 निकालना है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल मटेरियल क्या है, के की वैल्यू आती है ये 9.35 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो हीट फ्लो थ्रू अ प्लेन वॉल क्या है, क्यू निकालना अपने को एज पर फोरियर लॉ। अपने फोरियर लॉ देखा क्यू इक्वल्स टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो माइनस के T2 माइनस T1 अपॉन एल, तो माइनस 9.5 इंटू 4.5 इंटू माइनस 105 अपॉन 0.50। जो आंसर आएगा वो आएगा वैट में, क्योंकि ये क्यू है, इसकी यूनिट है वैट। अबे टेम्परेचर डिफरेंस निकल, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ अ फ्लो डायरेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आता है, dt बाई डी एक्स। रेशियो है फॉर फोरियर लॉ वी हैव dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन के ए। तो जो वैल्यू है वो लिखेंगे क्यू की, और के की वैल्यू जो है और एरिया जो है वो लिखेंगे, और इसका माइनस में आएगा माइनस 700 डिग्री सेल्सियस प्लस अपॉन मीटर जो है वो ये। सिंपल है, ऐसे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार आते भी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, आपको हमेशा तैयार रहना है। मेन तो ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। ये कभी कभी 8 मार्क के लिए भी आता है और ये आ सकता है कभी कभी 8 मार्क के लिए ये भी आता है। 8 और 8 16 हो गए, 16 मार्क की आपकी तो तैयारी हो गई। बट ऐसे में बहुत से अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूले के बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट ट्रांसफर के न्यूमेरिकल्स तो इजी रहते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं गलतियां कि वह जो यूनिट है वो लिखना भूल जाते हैं। इसीलिए यूनिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका यूनिट नहीं लिखेंगे आप तो आपका मार्क्स कट सकता है। आपको मेंशन करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालने से कुछ नहीं होगा। वैल्यूज तो आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं, बट उसकी वैल्यूज जो है वो आपको लिखनी पड़ेंगी। वैल्यूज के बाजू में उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे ही इंजीनियरिंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही।